Okay. Hi everyone. Good morning. So this is another session where we are going to learn some more things into the HTML. So in HTML, give a minute. Yeah. So in HTML, we saw in last session that how we can create the attributes to our HTML tags. So with the help of attribute, we can add some additional behavior to the HTML tags, right? Now we are going to learn about these attributes: ID attribute, title attribute, class attribute, and style attribute in HTML. So let's say we are having this HTML page. Okay. In this first attribute I'm going to show is ID attribute. So let's say I want to create a new HTML tag. So I'm going to create one form tag. Let's say input type equal to text. So this is your form tag. Why I'm calling it as a form tag? Because this tag we need to write inside the form element, and this we will use for getting the input from the customer or user. Okay, so this input type text will show you one text box on the browser. I will run this. Okay, you can see it will just show text box like this. Why this is showing this angle bracket? Let me check. It is because this one additional angle bracket was there. If you refresh, it will show like this. Okay, this is our normal text box where user can put the input in the form of text. Now this is the text box, and for this, if I want to add ID attribute, I can add it. So ID attribute we mainly use when you want to put some ID. Okay, and in whole page or in one page of your HTML, you can only have one ID per tag. Means it should be unique across the current page. So let's say I have put txt username. Okay. So if there is any other text box, I cannot put ID again. Okay. So we cannot have the same ID to multiple HTML tags. We need to mention some different ID for them. Okay. Because it is unique. ID should be unique, and it should not be repeated into the current page. Okay. एक एक पेज में क्या होना चाहिए, एक ही आईडी होना चाहिए, वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखो. ओके, सो दैट इज फॉर आईडी. आईडी क्यों देते हैं? ये एक सिलेक्टर होता है. सो बाय यूजिंग द आईडी वी कैन सिलेक्ट द एचटीएमएल एलिमेंट. जैसे कि लेट से हम कुछ सीएसएस लगा रहे हैं यहाँ पे. ओके, ये सीएसएस है, और इस सीएसएस में मुझे क्या करना है कि जो भी यूजर नेम नाम का टेक्स्ट बॉक्स है उसका कलर, बॉर्डर कलर रेड करना है. तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, आईडी मतलब हैश. ओके, दिस इज अ, मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टर क्या होता है कि वी कैन सिलेक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द बॉडी पार्ट, बॉडी सेक्शन ऑफ योर एचटीएमएल पेज. अभी एचटीएमएल एलिमेंट सिलेक्ट करना है, और अगर आईडी से करना है तो यू कैन गो विद द हैश. यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ txt यूजर नेम. ओके, इस तरीके से. और यहाँ पे हम कुछ भी सी से डाल सकते हैं, जैसे कि कलर कोलन रेड, बॉर्डर कलर. ओके, तो ये क्या करेगा, बराबर एक ही एलिमेंट तो सिलेक्ट करेगा जिसका यूजर नेम आईडी है, और उसका बॉर्डर कलर क्या कर देगा, रेड कर देगा, इस तरीके से. ओके, ये रेड हो गया, ये ब्लैक ही है क्योंकि इसका यूजर नेम आईडी नहीं है, इसका यूजर नेम टीएक्सटी पासवर्ड है. ओके, तो यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज we should have only one ID across the page, and that should not be repeated, and we can add the ID attribute by using the ID keyword equal to value. Value can be anything, but ID keyword should be same. Okay, so this is the use of ID attribute in your HTML page. Now ID के बजाय क्लास भी रहता है. अगर मान लो मुझे ये जो CSS है बॉर्डर कलर रेड, ये मुझे दोनों टेक बॉक्स को देनी है, इसको भी देनी है, इसको भी देनी है. तो इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, आईडी है तो मुझे फिर से ऐसा लिखना पड़ेगा, यूजर नेम नाम का जो टिक बॉक्स है उसको रेड करो, और पासवर्ड नाम का टिक बॉक्स है उसको भी रेड करो. जब मैं ऐसा लिखूंगा तब जाके वो दोनों टिक बॉक्स को रेड कर देगा. दैट इज ट्रू, बट आई डोंट वांट टू रिपीट दिस सीएसएस अगेन एंड अगेन टू टाइम्स फॉर टू डिफरेंट बॉक्सेस. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आईडी शुड बी यूनिक बट क्लास कैन बी डुप्लीकेट. मतलब
यहाँ पे इसका आईडी यूजर नेम है, इसका पासवर्ड, दैट इज फाइन। बट अगर मैंने ऐसा किया क्लास इक्वल टू कलर रेड, ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो क्लास है वो मैं डुप्लीकेट लिख सकता हूँ। डुप्लीकेट मतलब एक ही क्लास मल्टीपल टैग को हो सकता है। और यहाँ पे CSS लिखते टाइम क्या करेंगे, क्लास सिलेक्टर यूज करेंगे और ये रिमूव कर देंगे। देखो, जो भी कलर रेड नाम का CSS था उसको हमने, वो रिपीटेड था, उसको हमने अभी सेंट्रलाइज कर दिया, कॉमन कर दिया अक्रॉस मल्टीपल टैग्स। ओके, ये कैसे हुआ, बिकॉज वी आर नाउ यूजिंग क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर यूज करने के लिए यहाँ पे डॉट चाहिए, ओके, पीरियड चाहिए। और ये जो क्लास का नेम है वो जितने भी टैग को हमने दिया हुआ रहेगा एज अ क्लास एट्रीब्यूट, देन इट विल अप्लाई दिस CSS टू ऑल दोस HTML एलिमेंट। ओके, अभी रिफ्रेश करो, देखो आउटपुट में नो चेंज, बट कोड अपना थोड़ा अच्छे से मैनेज हो गया। ओके, रिफैक्टर हो गया। गॉट इट। सो दिस इज योर क्लास सिलेक्टर। क्लास का भी यूज करना है जब यू वांट टू ऐड द डुप्लीकेट selectors to multiple HTML element, you can go with the class. But if you want to use unique selector for HTML element, you can go with the ID. Got it? Next. Next is style. So style आपको पता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। इफ यू वांट टू अप्लाई द इनलाइन CSS, ओके, इनलाइन CSS अगर आपको अप्लाई करना है, यू कैन गो विद द स्टाइल एट्रीब्यूट। So we are discussing about attributes, okay, we are not discussing about CSS. CSS के लिए हमारा सेपरेट सेशन रहेगा। इन दिस सेशन वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स। अभी मैंने आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, फिर मैंने क्लास नाम का किया, अभी मैं स्टाइल नाम का करता हूँ। एट्रीब्यूट क्या होता है, दिस इज योर HTML टैग, इनपुट इज योर HTML टैग। एंड अगर मुझे इस HTML टैग के लिए और एडिशनल कुछ करना है, सो आई विल यूज द एट्रीब्यूट। तो टाइप इज अनदर एट्रीब्यूट। टाइप क्या करेगा आपको, यहाँ पे अलग अलग टाइप, मतलब जो इनपुट कंट्रोल आप प्लेस करने वाले हो HTML पेज पे, उसके अलग अलग टाइप वो क्या करेगा अपने को सेट करने के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट किया तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे रेडियो कर दिया, तो रेडियो बटन आ जाएगा। ओके, रिफ्रेश, देखो ये रेडियो बटन आ गया। सो दिस विल बेसिकली हेल्प यू टू get the input element only on the web page, but it will again change the control type with the help of type attribute। जैसे कि रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है। ओके, देखो चेक बॉक्स आ गया। तो क्या होता है कि एट्रीब्यूट आपको हेल्प करता है कि ओके, यू वांट इनपुट एलिमेंट, श्योर आई विल डू दैट। ये टैग से क्या होगा, उसको ब्राउजर को पता चलेगा कि आई वांट टू ऐड वन इनपुट एलिमेंट, लेकिन किस टाइप का एलिमेंट डालना है वो हम एट्रीब्यूट से उसको बता सकते हैं। आई वॉन्ट इनपुट एलिमेंट ऑफ द टाइप चेक बॉक्स, आई वॉन्ट इनपुट एलिमेंट ऑफ द टाइप टेक बॉक्स। तो ये हम एडिशनल इंफॉर्मेशन बता सकते हैं ब्राउजर को विद हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एट्रीब्यूट्स। ओके, एट्रीब्यूट मीन्स सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट HTML टाइप। अभी यहाँ पे क्या है, स्टाइल इक्वल टू, हम यहाँ पे स्टाइल भी डाल सकते हैं, जैसे कि कलर रेड। स्टाइल एट्रीब्यूट क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू अप्लाई इनलाइन CSS टू योर HTML टैग। ये HTML टैग है, इसको इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए हेल्प करेगा। देखो कलर मैंने रेड किया हुआ है, दिस इज टेस्ट। ओके, इस तरीके से। तो दिस कलर रेड कैसे आया, कहाँ से आया, इट इज बिकॉज ऑफ द इनलाइन CSS। सो ओनली ट्राई टू अंडरस्टैंड what is the use of attributes here. Okay, attribute will help you to provide some additional functionality to your current HTML tag, such as type attribute, style attribute, ID attribute, class attribute. Now we're going to see title attribute. अभी मान लो यहाँ पे एक हेडिंग है। ओके, हेडिंग है दिस इज H3 टैग। ओके, आपको पता है व्हाट इज H3। सो H3 मीन्स वन हेडिंग है, वो अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एंड देन देर आर 6 डिफरेंट हेडिंग्स। ओके, सो 6 डिफरेंट हेडिंग है जो आपको क्या करेंगे, उनके साइज के हिसाब से कंटेंट मैनेज करके देंगे। ओके, H1 मतलब बहुत बड़ा साइज होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, लाइक दैट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू चेक
how we can apply the tooltip over here. Okay, tooltip for uh, this HTML heading. तो मैं अभी क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ टाइटल इक्वल टू दिस इज टूलटिप. ओके, अब रिफ्रेश करो. नाउ यू कैन सी ऐसे हम टूलटिप भी दिखा सकते हैं. सो दिस टाइप एट्रीब्यूट विल हेल्प यू, टाइटल एट्रीब्यूट विल हेल्प यू टू डिस्प्ले टूलटिप ओवर द टेक्स्ट, HTML टेक्स्ट. ओके, ये जो HTML टेक्स्ट है उनके ऊपर अगर टूलटिप दिखाना है, सो दिस विल हेल्प यू इन दैट. गॉट इट? Okay, now let's discuss about some additional generic attributes like align attribute, v-align, then background color, bg color, background color. देखो ये सब हम CSS से कर सकते हैं, so no need to use them. Okay, ID हमने देखा, class हमने देखा, width and height भी हम CSS से कर सकते हैं, so वो भी कुछ अभी HTML से कुछ लगाने की जरूरत नहीं. and title हमने देखा. Okay, so I think we can remove this box. Because applying the style related things through CSS is the right practice. Don't apply formatting from the HTML tags. Okay, now let's discuss about some formatting tags. Again, this formatting you can do with the CSS only. You don't have to apply the formatting through HTML, but still for understanding some new tags in HTML, I will show you some examples in the formatting. Okay, अभी मान लो मुझे क्या करना है, this is H3, this is heading. Okay, welcome to HTML session. ऐसा हमने कुछ हेडिंग डाला हुआ है. ओके, HTML पेज पे यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, ये जो वेलकम नाम है उसको थोड़ा बोल्ड करना है. सो बोल्ड करना है, सो डेफिनेटली वी कैन डू दैट थ्रू CSS, बट मुझे HTML टैग के जरिए करना है, सो आई विल यूज बी टैग हियर. ओके, ऐसा अगर मैंने बी टैग डाला तो यू विल सी दैट HTML वर्ड इन अ बोल्ड फॉर्मेट. I think it is already in bold. Okay, whole thing is in bold because of the H3. So let's do one thing. Let's use span here. Okay, remove the tooltip and refresh the page. You will see that, I mean, apart from the welcome, everything is in normal text. Welcome should be displaying in the bold format. Okay, so this is how we can just use bold text. We can apply the bold effect to any of the text in your HTML page by using the B tag. Got it? नाउ थोड़ा इटैलिक करना है लेट्स से, तो इटैलिक करने के लिए क्या करोगे आप, इसको वेलकम को आई टैग लगाओगे आप. आई मीन्स इटैलिक, इस तरीके से. ओके, रिफ्रेश. गॉट इट? तो ये क्या हो गया, एक इटैलिक इफेक्ट अगर आपको डालना है सो यू कैन डू दैट. नेक्स्ट है आपके पास अंडरलाइन. ओके, सो अगर आपको इस वेलकम टेक्स्ट के लिए अंडरलाइन इफेक्ट डालना है, so you can just apply that u इस तरीके से. ओके, so just make sure you are maintaining the nested HTML tags properly. जैसे कि u सबसे पहले क्लोज ओपन हुआ है तो सबसे लास्ट में क्लोज होगा, i सब उसके बाद में ओपन हुआ है तो उससे पहले i क्लोज होगा, सबसे लास्ट में बी ओपन हुआ है तो सबसे पहले बी क्लोज होगा. ठीक है, ये जो नेस्टेड एलिमेंट्स है HTML के, वो आपसे आपको ठीक तरीके से करना है. अदरवाइज ऐसा मत करो कि यू सबसे पहले ओपन हुआ है तो उसको सबसे पहले क्लोज कर दे, तो ये चलेगा नहीं. ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग पे ध्यान रखना है, सब सिंपल चीज है. सबसे लास्ट में कौन ओपन हुआ था, ये उसको पहले क्लोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आई, इसके बाद यू. ओके, तो ये सीक्वेंस मैटर करता है. नाउ रिफ्रेश, यू कैन सी बोल्ड भी आ गया, इटैलिक भी आ गया, एंड देन अंडरलाइन भी आ गया. नेक्स्ट है ये स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट है. स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट मतलब आपको किसी टेक्स्ट को क्रॉस करना है. ओके, विद द हेल्प ऑफ सम लाइन. ओके, so you can use strike इस तरीके से, strike.
अभी आई थिंक ये टैग डेप्रिकेटेड है, इसलिए इट इज शोइंग इन रेड कलर। ओके, क्योंकि ये सब चीजें हम क्या कर सकते हैं, CSS से ही डाल सकते हैं। यू डोंट हैव टू यूज द HTML टैग टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ CSS। ओके, so that's why I'm just not focusing on this. So just don't use them. Okay, ये सब हम CSS से कर देंगे। Just to get the understanding, we can also have some additional tags, formatting tags in HTML. You should also aware about that. So that's why I just taken these examples. Like if you apply the strike tag, it will show you in strike through effect, then bold, italic, underline, and all these things you can definitely apply from the CSS. Okay, जैसे कि मैंने ये सब टैग निकाल दिए। ओके, ये सब टैग निकाल दिए। अभी ये वेलकम के लिए मुझे क्या करना है, कुछ CSS के जरिए ये सब इफेक्ट लगाने। तो मैं क्या करूंगा, वेलकम टेक्स्ट के आजू बाजू एक स्पैन टैग लगाऊंगा। ओके, और इस स्पैन टैग के इसमें एक क्लास लगा देता हूँ। ओके, TXT फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट लेते, कुछ भी क्लास दे सकते हो, क्लास का नाम कुछ भी रह सकता है। फिर मैंने क्या किया, CSS में यहाँ पे उस क्लास के लिए मैंने कुछ CSS लगा लिया। अभी मुझे वो HTML टैग ओपन क्लोज का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहाँ पे ओपन हुआ कहाँ पे क्लोज हुआ। मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे क्या क्या लगाना है, बोल्ड करना है। ओके, तो टेक्स्ट, सॉरी नॉट टेक्स्ट, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट बोल्ड। ओके, देन फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। ओके, देन टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। ये तीन टाइप के CSS मैंने डाल दिए। क्या होगा, फॉन्ट वेट बोल्ड आ गया, इटैलिक आ गया, अंडरलाइन आ गया। आउटपुट में आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा। देखो, ओके, लेट मी सेव इट। देखो, नो चेंजेस इन आउटपुट। सी, लेकिन बेनिफिट क्या है, वी हैव दिस टाइम वी हैव एडेड द फॉर्मेटिंग with the help of CSS, not with the help of HTML tags. Okay, so just try to use the right thing for doing the right doing your work. Okay, यहाँ पे CSS से ही करना है फॉर्मेटिंग, HTML से नहीं करना है। So that's why we are not going to use them, use these tags for formatting। कभी कभी कैसा रहता है कि मुझे बोल्ड करना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है, तो उसके लिए फिर लगता है कि एक अलग से HTML टैग क्लास क्यों लिखना है CSS का। उसके बजाय हम डायरेक्ट स्पैन में यहाँ पे बी टैग डाल देंगे। सो दैट इज एक्सेप्शनल, अगर ऐसा कुछ केस है तो डाल दो। लेकिन बहुत सारी चीजें करनी है, बोल्ड भी करना है, इटैलिक भी करना है, अंडरलाइन भी डालना है, उस केस में गो विद द CSS। अगर इन तीनों में से एक ही कुछ करना है, आई वुड से ऐड द HTML टैग, नो इश्यूज। और कुछ कुछ टैग है जैसे कि स्ट्राइक नाम का टैग है, वो अभी डेप्रिकेटेड हो गया, तो ये CSS थ्रू करो ना, टेक्स्ट डेकोरेशन स्ट्राइक थ्रू, है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, ये भी फॉर्मेटिंग टैग्स है, जैसे कि मार्क टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, अब्रिविएशन। सो डोंट यूज देम, वी विल डिस्कस अबाउट द कमेंट्स। ओके, so what is comment? Basically, in your HTML page, if you want to add some comments, like what is the below section, I want to add the comment like this. Okay, this is navbar section. ओके, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो भी कोड लिखूंगा वो मैं नेविगेशन बार के लिए लिखूंगा इस। ओके, तो ये नवबार सेक्शन। फिर मुझे और कुछ कमेंट डालने का है, दिस इज स्लाइडर सेक्शन। ओके, तो ये जो कमेंट्स रहते हैं HTML कोड में, ये क्यों डालने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज if some other developer coming in and he is working on your web page, so in that case उसको पता होना चाहिए कि इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है वो कौन से कंपोनेंट के बारे में है। EY में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सो फॉर विच कंपोनेंट वी हैव रिटर्न दिस कोड, ये क्या होता है,
हमें पता होना चाहिए. सो इन दैट केस वी कैन जस्ट ऐड सम कमेंट्स. सो कमेंट ऐड करने के लिए HTML में क्या कर सकते हो आप, एक एंगल ब्रैकेट ओपन करो, एक्सक्लेमेशन मार्क, double hyphen, space, add your comment, and again double hyphen and close the angle bracket. So this is how you can just add the comment in your HTML page. Okay, end करना है यहाँ पे. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई okay, this has been open here, this is close here. So this kind of comments you can add. आपको अगर मल्टी लाइन कमेंट डालना है, जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारा HTML का कोड था लेट्स से. ओके, जैसे कि यहाँ पे एक स्पैन था, उसके बाद ये दूसरा स्पैन है, ये तीसरा स्पैन है, ये सब मैंने HTML का कोड करके रखा हुआ है. लेकिन आई जस्ट वांट टू कमेंट दिस कोड फॉर टाइम बिंग. ओके, जैसे कि यहाँ पे आउटपुट भी दिखेगा आपको. ओके, इसमें से मुझे क्या करना है, 3 लाइन, पहले 3 लाइन कमेंट करके रखना है. मतलब इसको यूज नहीं करना है, जस्ट कमेंट करके रखो, बाद में हम यूज करेंगे. उस केस में आप क्या करना है, कंट्रोल के से करोगे तो ये कमेंट हो जाएगा मल्टी लाइन. या फिर आपको क्या करना है, मैनुअली जाके यहाँ पे एंगल ब्रैकेट ओपन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल हाइपन ये डालना है. उसके बाद जहां तक आपको कमेंट करना है वहां तक आपको ये क्लोजिंग का टैग नहीं डालना है. मान लो मुझे 2 लाइन थी कमेंट करना है, तो मैं ये यहाँ पे डालूंगा. अभी 2 लाइन कमेंट होंगी, देखो ग्रीन कलर में जो दिख रहा है दैट इज कमेंटेड कोड. ओके, मुझे सारे के सारे चारों लाइन कमेंट करने, सो आई विल ऐड लाइक दिस. ओके, so this is how we can apply the multi-line comments in HTML. Got it? So multi-line as well as single line you can do. This is single line comment. Okay, this is multi-line comment. Got it? I hope you got it. Okay, और अगर कमेंट कर दिया है तो वो जो कोड है वो आपके फाइल में वैसे के वैसे रहेगा. यू कैन ऑल्सो रीड दैट, बट दैट विल नॉट विजिबल इन द वेब पेज यहाँ पे. ओके, so let me stop the recording.